بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ پروفیسر محمد صدیق ضیاء النور سینٹر آف ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جمع دہم مضمون مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر 7 کا کوشچن نمبر 2 کے متعلق جانیں گے، جو کہ لیکچر نمبر ہمارا 17 بنتا ہے۔ آج کا ہمارا سوال ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پاکستان اور بھارت کے درمیان کس طرح کے ریلیشن ہیں، انہیں ایک نظر میں ہم نے دیکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدود اربع کے اعتبار سے پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے، اور جب سے پاکستان بنا تب سے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں رہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک تو بر صغیر کا تقسیم ہونا، پاکستان کا ایک الگ ملک بننا، یہی مخالفت کی بڑی وجہ ہے، اور دوسری بڑی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے جنوبی ایشیا کے خطہ کے اندر، کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا، اور ان تعلقات کے خراب ہونے کی بنا پہ آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 بڑے جنگیں ہو چکی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہمارے تھے ایک پس منظر تھا، ایک تعارفی کلمات تھے جو کہ آپ ابتدا میں لکھیں گے، تعارفی کلمات، اور اس کے بعد آپ اس کے پوائنٹ بنا لیں گے۔ تعارف لکھ لیں، پس منظر لکھیں، حرف آغاز لکھیں، تمہیدی کلمات لکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، جس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ جھگڑا کی وجہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کتاب پہ آپ غور کریں تو ہمارا پہلا نمبر ہے، اس کو توجہ سے دیکھیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے، تنازع جھگڑا، جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ تنازع ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنا رکھا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ یہ جو پہلا نمبر ہے، اس کا آپ پوائنٹ بنائیں گے، کیونکہ اگر بورڈ کے اندر آپ سوال لکھتے ہیں نمبروں کی صورت میں تو وہ اتنا جو ہے ایفیکٹو نہیں ہوتا، جتنا کہ آپ اس کے پوائنٹ بنا کے لکھیں تو ایک چیک کرنے والے پہ بہتر تاثر قائم ہوتا ہے۔ تو پہلا ہمارا پوائنٹ ہوگا مسئلہ کشمیر۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان نے اس مسئلہ کو اقوام متحدہ کے سامنے رکھا، اور ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ اس مسئلہ کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، لیکن جس پلیٹ فارم پہ بھی بھارت کو دعوت دی گئی، ہمیشہ اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور پیٹھ پھیرتا ہوا نظر آیا۔ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ اگر یہ درمیان سے نکال دیا جائے تو تمام اداروں کے اندر، تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن اپنے قائم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو جھگڑے کی وجہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔
नंबर 2 की तरफ आते हैं। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसला के हल के लिए सिंतास मुआहदा पर दस्तखत हुए। इसके बावजूद भारत खिलाफ वर्जी करता रहा। पाकिस्तान और भारतीय सरबराहों के दरमियान 1971 की जंग के बाद 1972 में एक शिमला जगह है, शिमला के मकाम पर मुआहदा हुआ। इस मुआहदे की रूह से पाकिस्तान, यहाँ तक बेटा आपने इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग करना है। जहाँ पे मैंने इस एक जो आपका नंबर है नंबर 2, इसके मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, एक मुआहदा सिंतास और दूसरा शिमला मुआहदा। यहाँ तक आप देखें कि मुआहदे पर दस्तखत हुए, इसके बावजूद भारत हमेशा खिलाफ वर्जी करता रहा। मुआहदा सिंतास क्या है? ये एक दुनिया का कानून है कि जहाँ कहीं से दरिया गुजरते हैं वो ज़मीन, वो मुल्क उससे मुस्तफ़ीद होता है। लेकिन पाकिस्तान में जितने दरिया आ रहे हैं वो इंडिया से होके आते हैं, और जैसे ही पाकिस्तान बना उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं पर कब्जा कर लिया, पानी को रोक लिया। उस पानी के झगड़े को हल करने के लिए एक मुआहदा हुआ जिसे मुआहदा सिंध तास कहते हैं 1960 के अंदर, जिसमें 3 दरिया रावी, सतलुज, ब्यास, इसका पानी भारत के पास रहेगा। सिंध, झेलम, चनाब का पानी पाकिस्तान के पास रहेगा। इस मुआहदा को मुआहदा सिंध तास कहते हैं। अमूमी तौर पे हमारा ये मुख्तसर सवाल भी आ जाता है कि मुआहदा सिंध तास से क्या मुराद है? व्हाट इज सिंध ट्रीटी? मुआहदा सिंध तास किसे कहते हैं? अज़ीज़ तलबो तालिबात, इसके बाद शिमला मुआहदा है। ज़रा किताब पे देखें। पाकिस्तान और भारतीय सरबराहों के दरमियान 1971 की जंग के बाद 1972 में शिमला मुआहदा हुआ। इस मुआहदे की रूह से पाकिस्तान और भारत ने इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की। ये एक शिमला जगह है, वहाँ पे दोनों ममालिक के सफ़ीरान इकट्ठे हुए। वहाँ पे एक मुआहदा तय पाया कि आइंदा से इन 2 ममालिक के दरमियान, यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो झगड़े हैं उन झगड़ों को बामी मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा, जिसको शिमला मुआहदा का नाम दिया जाता है। इसके बाद आप किताब के नंबर 3 से देखें। 1985 से जनूबी एशिया के इलाकाई ताउन की तंजीम, इलाकाई ताउन की तंजीम जिसे सार्क का नाम दिया गया है, जनूबी एशिया के इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क के दायरे में दोनों ममालिक ने ताउन को बढ़ाने की कोशिशें की, जिसका खातिर खा नतीजा न निकला। 1988 में, यहाँ तक इस पॉइंट को भी मैंने 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है सार्क कॉन्फ्रेंस से, कि जनूबी एशिया के इलाकाई ताउन की तंजीम एशिया की तंजीम है, जो कि एशिया के अंदर जितने ममालिक हैं वो इसके रुकन हैं, और इनके दरमियान कॉन्फ्रेंसें होती रहीं, और कॉन्फ्रेंसों के दरमियान हमेशा दोनों ममालिक के वज़राए आज़म आपस में मुलाकात करते रहे, और कोशिश ये होती रही कि इनके दरमियान जो तनाज़ात हैं उन्हें बामी बैठक के साथ हल किया जाए, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। इसके बाद एक मुआहदा हुआ और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इंडिया के वज़ीर आज़म के साथ मिले, और ये कोशिश की गई कि एक मुआहदा तय पा जाए कि दोनों ममालिक जो हैं
वो एक एटमी ताकत है। अगर इंडिया जो है वो मुल्क पाकिस्तान पे हमला करता है, मुल्क पाकिस्तान इंडिया पे हमला करता है, तो नतीजा क्या निकलेगा? दुनिया में एक तबाही होगी, इसके सिवा कुछ नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान एक बामी मुआहदा हो जाए ताकि उस मुआहदा के ज़रिए दोनों ममालिक पाबंद हो जाएं कि वो कभी भी एक दूसरे के जौहरी मराकज़ पे हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को मिलने का मौका मिला जिसमें एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के जौहरी मराकज़ पर हमला न करने के पाबंद होंगे। तो जी तलबा व तालिबात, हमने जो हमारा दूसरा नंबर था उसके भी 2 पॉइंट बनाए, और नंबर 4 और नंबर 5 जो है ये हमारा तीसरा नंबर था, इसके भी हमने 2 पॉइंट बना लिए। क्योंकि बोर्ड में जितने आपके पॉइंट ज़्यादा होंगे इतना एक चेकर के ऊपर एक अच्छा तसव्वुर कायम होगा और अच्छे नंबरों की उम्मीद की जा सकेगी। इसके बाद ताल्लुकात में बेहतरी, नंबर 4 की तरफ आप आए। किताब का नंबर 4 है लेकिन पॉइंट हमारे पास 6 है। 1990 में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई, बामी तिजारत और लोगों की आमदोरफ्त बढ़ी। ये ताल्लुकात एक हद से आगे न बढ़ सके क्योंकि भारत मसला कश्मीर को मुनसिफाना तौर पे हल नहीं करना चाहता। पाकिस्तान अब भी अपने इस मुनसिफाना मौक़िफ़ पर कायम है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर की हुई करारदादों के मुताबिक मज़लूम कश्मीरियों की राय के ज़रिए हल किया जाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ताल्लुकात में बेहतरी ज़रूर आई और एक मामलात जो हैं वो संवरते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये हमेशा से रहा है कि जब भी मामलात संवरने की कोशिश करते हैं, दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी में जो चीज़ रुकावट बनती है, जो चीज़ आड़े आती है, वो मसला कश्मीर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बिल मंजूर कर रखा है, ये करारदादें मंजूर हो चुकी हैं कि कश्मीरियों की राय के मुताबिक फ़ैसला किया जाए, वहाँ पे राय शुमारी कराई जाए जिस तरह वहाँ के लोग चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर हमेशा लोगों की ख्वाहिश, लोगों की राय और मर्जी का एहतराम किया जा रहा है। तो अगर मसला कश्मीर के अंदर भी लोगों की राय शुमारी कराई जाए, जिस तरह कश्मीरी चाहते हैं उनके मर्जी के मुताबिक फ़ैसला किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा इससे इनहिराफ करता रहा, वो हमेशा इससे फिर जाता रहा। हमेशा मुल्क पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम किया है, उसके करारदादों की पासदारी की है, लेकिन तब से लेकर अब तक हालात बेहतर नहीं हो रहे, बल्कि मौजूदा हुकूमत के दौरान तो ये बिल भी पास कर दिया गया कि भारत के जो दूसरे लोग हैं वो मसला कश्मीर के अंदर अपनी जायदादें बना सकते हैं, वहाँ पे और कारोबारी मराकज़ खोल सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे भारत के लोग भी रहते हैं, जिसमें कश्मीर वाले जो हैं उनसे एक हक छीना जाएगा। तो ये इस हुकूमत के दरमियान हुआ, यानी अभी तक मामलात संवरते नज़र नहीं आ रहे। जब भी ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाते हैं, अगर कोई चीज़ आड़े बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मसला कश्मीर है। इसके बाद नंबर 5 की तरफ आते हैं। 14 था 17 जुलाई 2001 में पाकिस्तान के सदर और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान अपनी नौइयत की पहली आगरा कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले 3
रोज़ा मुज़ाकरात बगैर हतमी फैसला के ख़त्म हुए। हम देख सकते हैं कि आगरा के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये 3 रोज़ा थी और 3 दिनों के अंदर हमेशा यही रहा कि ताल्लुकात को किस तरह बेहतर किया जाए, लेकिन हट धर्मी, मुखालफत, इनहिराफ यही सामने आता रहा और मामलात संवर न सके। नंबर 6, जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली सौर कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात हुए। यहाँ पे वज़ीर आज़म की मुलाकात है 2013 के अंदर भी हुई है और यहाँ पे इसी चीज़ को वाज़ेह कर रहा हूँ 2014 के अंदर भी मुलाकातें हुई हैं। मुज़ाकरात और कई समझौते तय पाए। ये समझौते जो हैं ये तय पाए, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ जैसे ही भारत की हुकूमत तब्दील हुई, इधर से पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील हुई, तो वो जो मुज़ाकरात एक तय पाए थे फिर उन्हें भी एक ख़त्म कर दिया गया। 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर भी पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई और मुलाकात को जारी रखने का इरादा किया गया। इरादा होता है बात को दोहराना, कि वज़ीर आज़म की मुलाकातें होती रहीं, चाहे वो सौर कॉन्फ्रेंस थी, चाहे आगरा कॉन्फ्रेंस थी, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास के मौके पे मुलाकातें होती रहीं, लेकिन मौजूदा अगर हालत को देखा जाए तो ताल्लुकात बेहतर नज़र नहीं आते। नंबर 9 पे हम हासिल कलाम लिखेंगे कि हम नतीजा क्या अखज़ कर सकते हैं, इस कलाम का माखज़ क्या है, माहसल क्या है, नतीजा क्या है। अज़ीज़ तलबो तालिबात, हमेशा वही मुल्क तरक्की करते हैं जिनकी हदूद महफूज हुआ करती हैं, जिनकी बाउंड्री जो है वो महफूज होती है। लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी सरहद जो है वो इंडिया के साथ मिलती है और एक बड़ी फ़ौज मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफाजत के लिए मुतअय्यन करना पड़ती है, जिस पे एक बहुत बड़ा सरमाया खर्च होता है। उसके अलावा एटमी दौर है और दोनों ममालिक बेशबहा सरमाया इस चीज़ पे लगा रहे हैं ताकि वो हथियार की दौड़ में आगे बढ़े, लेकिन एशिया खित्ते का अमन व सकून इसके अंदर है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। अगर ये ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो दोनों ममालिक तरक्की के रास्ते की तरफ गामज़न होंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर को तवज्जो से सुनेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे और नकात पढ़ेंगे तो बआसानी सवाल समझने में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इंशाअल्लाह नए लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।